کراچی سے خیبر تک پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے جان لیتے ہیں ہیڈ لائنز۔ گجرانوالہ میں سوئی گیس کے زائد بلوں کے خلاف مشتعل افراد کا ریجنل آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ ملتان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کے حق میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا۔ محکمہ تعلیم کی لاجواب کارکردگی، نارووال میں سرکاری اسکول کی چار دیواری نہ ہونے سے طالبات کو مشکلات کا سامنا۔ شکارپور کے نواحی گاؤں سلطان کوٹ میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ پیرپور خاص بورڈ کی دانستہ غفلت کے باعث سیکنڈ ایئر کے 5 طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سانگھڑ میں پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کی اپنے مطالبات کے حق میں علامتی بھوک ہڑتال۔ پشاور میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے ایس ایچ او نزاکت علی شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اور کوئٹہ میں نیشنل پارٹی خواتین ونگ کی جانب سے بختیار خان ڈومکی کی اہلیہ، بیٹی اور ڈرائیور کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور خبروں کا آغاز کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ سب سے پہلے بات کریں گے گجرانوالہ کی، جہاں سوئی گیس کے زائد بلوں کے خلاف مقامی افراد کی جانب سے ریجنل آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ گیس کے زائد بلوں کے خلاف مرد اور خواتین ریجنل سوئی گیس آفس کے سامنے جمع ہو گئے اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ متاثرین نے ہاتھوں میں زائد بل اٹھا رکھے تھے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ صبح شام گیس دستیاب نہیں ہوتی، جس کے باعث گھریلو زندگی مفلوج ہو چکی ہے، لیکن اوور بلنگ جاری ہے۔ مظاہرے میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا کہ گیس کی عدم فراہمی کے باوجود بل 5 سے 6 ہزار روپے آ رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر زائد بلوں کا نوٹس لے۔ دوسری جانب سوئی گیس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر سیکشن کی غلطی کی وجہ سے زائد بل بھیجے گئے، جسے جلد ہی درست کر دیا جائے گا۔ ادھر ملتان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا بھی دیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا تھا کہ نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی اور بنیادی صحت کو مستقل نہ کیے جانے کے خلاف وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، لہٰذا نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی اور بنیادی صحت کو فوری مستقل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں اور کانٹریکٹ پالیسی ختم کر کے ملازمین کو مستقل کیا جائے اور ان کی تنخواہوں میں بھی نرسنگ سٹاف کی طرح اضافہ کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال کو جاری رکھا جائے گا۔ بعد ازاں ڈی او ہیلتھ اور اسسٹنٹ کمشنر نے ان سے مذاکرات کیے اور ان کے مطالبات اعلی حکام تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی، مگر ہیلتھ ورکرز نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ بات کریں گے نارووال کی، جہاں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول بولا باجوہ کی چار دیواری نہ ہونے کے باعث بچیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول بولا باجہ مسلم کاف کے دور میں 11.5 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ مارچ 2011 میں رکن قومی اسمبلی احسن اقبال نے اسے اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول کا درجہ دلایا اور 44 لاکھ روپے کی لاگت سے نیا بلاک بھی تعمیر کیا، مگر 8 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بچوں کے اسکول کی چار دیواری تاحال تعمیر نہیں کی جا سکی، جبکہ بچوں کی اسکول کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو گئی ہے اور یہاں ابھی تک پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹیاں چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمارت کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کی چار دیواری اور بچوں کے لیے پینے کے پانی کا بھی انتظام کیا جائے۔
सियालकोट से एक खबर शामिल करेंगे, जहां किसानों ने एक निजी राइस मिल ओनर की जानिब से बोगस चेक देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। डीसीओ ऑफिस के सामने किए गए इस मुजाहिरे में शरीक किसानों ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि मिल ओनर ने 50 से जायद किसानों से बोगस चेकों के जरिए 6.5 करोड़ रुपए मालियत के चावल खरीद लिए, जबकि मिल ओनर के अकाउंट में रकम न होने के बायस चेक कैश नहीं कराया जा सका, जबकि मिल ओनर उनकी 50,000 बोरियां चावल लेकर फरार हो गया है। इस मौके पर फ्रॉड का निशाना बनने वाले किसानों ने आला हुकाम से अपील की कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनकी रकम की वापसी को यकीनी बनाया जाए। उधर फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के कयाम के लिए वकला ने जिला कचहरी के सामने धरना दिया और बेंच के कयाम के लिए अमली जदोजहद का भी ऐलान किया। वकला का कहना था कि फैसलाबाद डिवीजन के 1.5 करोड़ आवाम को हाईकोर्ट में पेशी के लिए एक दिन कबल लाहौर जाना पड़ता है, जिससे वक्त का जिया होता है और होटल में कयाम के अखराजात भी होते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि फैसलाबाद में हाईकोर्ट का कयाम नागुज़ीर हो चुका है और अब वो इसके लिए अमली जदोजहद करेंगे। इस मौके पर सदर फैसलाबाद बार मुनव्वर हुसैन और सेक्रेटरी बार और दीगर ओहदेदारान ने खिताब भी किया। धरने के बाद वकला और समाजी तंजीमों के ओहदेदारान ने मार्च भी किया और बेंच और बार के हक में नारे लगाए। मंडी सादिकगंज में पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत होने वाले मैचेस में अल फरीद क्रिकेट क्लब ने जाबाज क्लब को 139 रन से शिकस्त दे दी। अल फरीद क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुखालिफ टीम को 245 रन का टारगेट दिया, मगर जाबाज क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 106 रन पर ढेर हो गई। इस मौके पर मैच के मेहमान खुसूसी MNA मियां मुश्ताक अहमद सखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेलों से नौजवान मंशियात जैसी लानत से महफूज रहते हैं और माशरे में हम आहंगी की फिजा भी पैदा होती है। बादज़ा उन्होंने मैच जीतने वाली टीम में इनामात भी तकसीम किए। सियालकोट की तहसील पसरूर की बात करें, जिसके नवाही गांव में आज भी तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सियालकोट की तहसील पसरूर के गांव फतेहपुर में 1985 में कायम होने वाला गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है और स्कूल के होनहार तलबा और टीचर्स बिजली की सहूलियात के बगैर खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का कहना था कि तलबा बुनियादी सहूलियात मैसर न होने के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उधर इलाका मकीनों का कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबात से कबल स्कूल की तामीर का वादा तो करते हैं, मगर मुंतखब हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब से अपील की कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गुजरांवाला में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से स्केल 1 ता 5 के मुलाजमीन का सब स्ट्रक्चर मंजूर न हो जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर पंजाब हुकूमत की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ को सहूलियात न दिए जाने पर मुलाजमीन ने नारे लगाए। जुलूस के शुरका का कहना था कि हुकूमत स्केल 1 ता 5 के मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर को फौरी तौर पर मंजूर करे। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर इनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। उधर एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने अस्पताल में मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ा। सियालकोट में तहरीक ख़त्म नबूवत की जानिब से कादियानियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तहरीक ख़त्म नबूवत के ज़िले अमीर सैयद शब्बीर अहमद गिलानी की ज़ेर क़यादत निकाली गई इस रैली के शुरका ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कादियानियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। शुरका ने रैली को मुख्तलिफ रास्तों, सड़कों और बाजारों से गुजारने के बाद सरदार बेगम अस्पताल पहुंचने पर कादियानियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और हुकूमत से कादियानियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। रैली में सैकड़ों कारकुनान के अलावा मुकामी अफराद ने भी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट की बात करते चले, जिसने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ केस की समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। वहीं वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया है कि मुख्तलिफ पावर कंपनीज को रकम की अदायगी के बाद मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। अदालतों और अस्पतालों को बिजली की बंदिश से मुस्तस्ना करार दिए जाने और बिजली की बंदिश मुकम्मल खत्म करने की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया
کہ جیسے ہی بجلی کی بندش کا معاملہ عدالتوں میں آتا ہے لوڈ شیڈنگ اچانک ختم ہو جاتی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت عوام کو جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا ڈرامہ رچاتی ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کے روبرو جواب داخل کرواتے ہوئے کہا کہ مختلف پاور جنریشن کمپنیز کی رقم کی ادائیگی کے بعد ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ شکر ہے کہ حکومت نے عوام کو کچھ ریلیف دیا۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست کی 6 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی۔ کچھ بات کرتے چلیں ہم پی آئی سی ادویات کے ریاکشن کے حوالے سے۔ نارووال میں بھی پی آئی سی ادویات کے ریاکشن سے 60 سالہ شخص انتقال کر گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا محمد انور کے لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ کارڈیالوجی کے عملے نے ان کے مریض کا سابقہ ریکارڈ ضائع کر دیا ہے اور مریض کے استعمال میں آنے والی ادویات بھی منگوا لی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے مریض کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لاہور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ ڈاکٹرز کی تمام تر کوششوں کے باوجود جاں بر نہ ہو سکا۔ لواحقین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے جعلی ادویات سے متاثرہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں۔ فیصل آباد سے خبر شامل کریں گے، جہاں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین نے برطرفی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور پرامن مظاہرہ بھی کیا۔ ایپکا اور امپلائرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی جی سی یونیورسٹی سے ضلع کونسل چوک تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ جس کو چاہتی ہے نکال دیتی ہے اور من پسند افراد کو بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 6 ماہ کا کانٹریکٹ کیا جاتا تھا، مگر اب روزانہ کی بنیاد پر ہی کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ڈیلی ویجز کو کنفرم کیا جائے۔ اس موقع پر 3 مظاہرین نے 11 فروری کو گورنر پنجاب کی فیصل آباد آمد پر خود سوزی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ فیصل آباد کے بعد یہاں ذکر کریں گے گجرانوالہ کا، جہاں ٹول ٹیکس کی وصولی کے خلاف وکلاء کی جی ٹی روڈ پر دھرنے سے ٹریفک جام ہو گیا، جس سے مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء نے ٹول ٹیکس کی وصولی کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کاموں کی جی ٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ دھرنے کے دوران سینکڑوں گاڑیاں ٹریفک میں پھنس گئی، جس سے گھنٹوں ٹریفک معطل رہی۔ احتجاجی دھرنے کے دوران بعض وکلاء جی ٹی روڈ پر اونچی آواز میں گانے لگا کر ڈانس اور بعض کرکٹ کھیلنے میں مشغول نظر آئے۔ وکلاء کے احتجاج کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں طویل احتجاجی مظاہرے کے بعد بار کے ممبران اور این ایل سی کے درمیان مذاکرات کے بعد کاموں کی سے گجرانوالہ جانے والے وکلاء کی گاڑیوں کو ٹول ٹیکس کی فراہمی سے مستثنی قرار دے دیا گیا، جس کے بعد وکلاء نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ناظرین آپ کو لے چلیں گے اس وقت ثوابی، جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون؟ ملک کی سب سے بڑی بیماری، ملک کا سب سے بڑا مجرم، ملک کا سب سے بڑا لٹیرا آصف علی بیماری۔ لیکن اس زرداری کو بچانے والے کون ہیں؟ مولانا سب سے پہلا مولانا فضل الرحمان، پتہ نہیں مولانا صاحب سیاست اسلام کے نام پہ اور ڈیزل کے پرمٹ لیتے ہو۔ ایک طرف مولانا
फजल रहमान हर दूसरे दिन अमेरिका को बुरा भला कहता है। आपको पता है कि 4 सालों में अमेरिका की जंग पे इस हुकूमत ने आपके ऊपर कितना नुकसान किया? गौर से सुने, 4,000 अरब रुपया हर महीना ये गरीब कौम अमेरिका की जंग में 96 अरब रुपया खर्च करती है आपका, और यह जाया होता है आपका। इनके साथ इस हुकूमत को बचाने वाला सबसे पहला फजल रहमान, उसके बाद शेरे पख्तूनख्वा, कौन? इजी लोड। और तीसरा तहरीक इंसाफ के सरबराह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त सवाबी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ आज ANP को भी तनकीद का निशाना बनाया और सदर आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीदी नारे लगाए गए। इस जलसा-ए-आम में इमरान खान मौजूद हैं इस वक्त सवाबी में और जलसा-ए-आम से वो खिताब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोलिशन पर एक बार फिर से तनकीद की गई। इसके साथ साथ असफंदियार वली खान और मौलाना फजल रहमान के साथ साथ दीगर इत्तेहादियों पर भी शदीद तनकीद की गई और तनकीदी नारे लगाए गए इस वक्त। और यहाँ पर आपको बताते चले कि इमरान खान सवाबी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं और दोनों इस मुल्क में निजाम नहीं बदलना देखना चाहते, वो तब्दीली नहीं देखना चाहते। और अब ये दोनों 18वीं तरमीम में पहले इकट्ठे हुए, अब 20वीं तरमीम में ये सब इकट्ठे होने लगे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका एक मकसद है इन सबको तहरीके इंसाफ की सुनामी का खौफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त सवाबी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और अब बढ़ेंगे कराची से खैबर तक की दीगर खबरों की जानिब पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जिसने TCP की जानिब से शुगर मिलों से महंगी चीनी खरीदने के खिलाफ केस की समाअत 27 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत TCP ने जवाब दाखिल करवाते हुए कहा कि TCP ने 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी 65 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी और आइंदा माह मजीद 1 लाख मेट्रिक टन चीनी 45 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि TCP ने महंगी चीनी खरीदने का एतराफ कर लिया है, लिहाजा अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। अदालत ने दरखास्त गुजार को जवाब दाखिल कराने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत 27 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर मुल्तान में शहरियों ने डकैती की वारदात में पकड़े जाने वाले डाकुओं की खूब तवाज़ो की, तहम पुलिस की इजाफी नफरी ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं को हिरासत में ले लिया। मुल्तान के इलाके रंगेलपुरा में 3 डाकू एक घर में दाखिल हुए तो अहले खाना ने शोर मचा दिया, जिस पर मोहल्लेदारों ने 3 में से 2 डाकुओं को पकड़ लिया। शहरियों के हत्थे चढ़ने वाले दोनों डाकू आशिक और वहीद को शहरियों ने मार मार कर बेहाल कर दिया और इन्हें जान से मारने की भी कोशिश की गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार भी डाकुओं को शहरियों की खातिर तवाज़ु से ना बचा सके। बादशाह पुलिस की इजाफी नफरी ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं को शहरियों के चंगुल से आज़ाद करवा कर अपनी हिरासत में ले लिया। थाना शाह शम्स पुलिस ने तीसरे डाकू को भी थाना कुतुबपुरा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। हवेली लखा में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम तलबा में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जनाब पार्क बल्दिया हवेली लखा में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से
मिडिल क्लास तक के तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। तकरीब में तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज मुसलमान दुनिया में इसीलिए रुस्वा हो रहे हैं कि उनके दिल में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद नहीं रही। इस मौके पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा अली हैदर मोहम्मदी को 15,000, अबू बकर मुतीन को 12,500 और समरा सदफ को 7,000 रुपये और ट्रॉफियां भी दी गईं। तकरीब में शेख मोहम्मद सादिक मोहम्मद फारूक, अजहर हाजी अब्दुल मजीद इसरार और इसके साथ साथ अहमद गौरी, चौधरी मुख्तार अहमद और राना मिराजुद्दीन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सुबह पंजाब से खबरें आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरें सुबह सिंध से। सबसे पहले बात करेंगे शिकारपुर की, जिसके नवाही गांव सुल्तान कोट में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान कोट थाना की हदूद में नेशनल हाईवे रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में बदनाम जमाना डाकू इमदाद सुनाराई हलाक हो गया, जबकि पुलिस ने इसके भाई मिर्जा सिंदरानी को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद कर लिया गया इन दोनों डाकुओं से और पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू लूट मार और कत्ल समेत 17 से ज्यादा संगीन वारदातों में मतलूब था, जबकि हुकूमत की जानिब से उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर किया गया था। उधर नौकोट में हायर सेकेंडरी स्कूल और तालीमी बोर्ड मीरपुर खास की दानिस्ता गफलत के बायस 12वीं जमात के 5 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। सवात और कराची के मुख्तलिफ बोर्ड से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाले मोहम्मद तारिक रजा खान, इसके साथ साथ नूरुल इस्लाम और मजहरुल्लाह खान ने इंटर के सालाना इम्तिहानात के लिए नौकोट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया और सालाना इम्तिहानात के लिए तालीमी बोर्ड मीरपुर खास में इनरोलमेंट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करवाए। बादशाह तालीमी बोर्ड मीरपुर खास की कॉन्ट्रैक्ट ब्रांच से हासिल किए गए नोट के मुताबिक इम्तिहानी सेंटर से 11वीं और 12वीं जमात के पेपर भी दिए, मगर तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानात के नताइज में 5 उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया, जिस पर तलबा ने मुतालिका बोर्ड से रुजू किया तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रांच ने माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स गायब कर दिए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि कुछ नामालूम अफराद बोर्ड के नताइज में रद्दोबदल कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ फराहम करके उनका 1 साल ज़ाया होने से बचाया जाए। बात करेंगे सांगड़ की, जहां पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर पीएमए के सदर डॉक्टर नायक राम, डॉक्टर ताहिर कुलियार, डॉक्टर रामचंद गोखलाई, डॉक्टर शब्बीर झेंडा और दीगर का कहना था कि सिंध के डॉक्टर्स को बाकी सूबों की तरह मुराद नहीं दी जा रही। सिंध के डॉक्टर्स को भी टाइम स्केल और प्रमोशन दी जाए। उन्होंने कहा कि उनकी 15 साल से ज़ायद सर्विस हो चुकी है मगर कोई तरक्की नहीं की गई, जबकि वो अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हैं तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए तो वो सिंध भर में एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। नौकोट से एक और खबर शामिल करेंगे, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मेंबर साजी मुहिम शुरू हो गई है। अंदरूनी सिंध तंजीमी कमेटी के इंचार्ज उमर कुरैशी ने मीडिया को से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राबता कमेटी ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर दिया है और आज से कराची से कश्मीर तक मेंबर साजी मुहिम शुरू हो चुकी है। सिंध के छोटे बड़े शहरों में कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन चाहते हैं कि मुल्क में मरूसी सियासत का खात्मा हो और 98% मजलूम और मुतवस्सित तबके के ऐवानों में नुमाइंदगी मौजूद हो। इस मौके पर सेक्टर झट्टू के जॉइंट इंचार्ज सलीम रजा कायम खानी, इसके साथ साथ यूनिट इंचार्ज नौकोट फरमान कायम खानी और साबिक नायब नाजिम शफीक कायम खानी भी मौजूद थे। घारो के नवाही गांव बसर खालेसी में चूल्हे से लगने वाली आग से 27 कच्चे घर जलकर राख का ढेर बन गए। मजीद बता रहे हैं इमरान अली अपनी रिपोर्ट में।
घारो के करीब नवाई गांव बसर खास किली में चूल्हे से लगने वाली आग ने तबाही फैला दी, जिसकी लपेट में आने वाले 27 कच्चे घर जलकर राख का ढेर बन गए। जबकि शहर से दूर होने की वजह से बर वक्त फायर ब्रिगेड भी मौके पर नहीं पहुंच सकी और घर में रखा साल भर का अनाज और घर का कीमती सामान सब कुछ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि आग दिन 11 बजे खाना पकाते हुए चूल्हे की आग से लगी और तेज हवाओं के बाइस आग ने दीगर 26 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जबकि घरों में मौजूद खवातीन ने सिर्फ बच्चों को ही बचाने में कामयाब हो सकी और ये वो वक्त था जब घरों के तमाम मर्द काम पर गए हुए थे। इत्तला मिलने पर डीसीओ ठट्ठा अब्दुल हफीज सयाल ने मुतासिरीन की फौरी मदद करते हुए सर छुपाने के लिए 27 टेंट मुहैया किए और खाने के लिए अनाज की 20 से ज्यादा बोरियां भी फराहम की। जबकि पीपी के साबका एमपी गुलाम कादर पलीजो और तालका मीरपुर साकरो के एडमिनिस्ट्रेटर मंजूर अब्बासी ने भी वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासिरीन के गोट पहुंचकर मुतासिरीन में राशन तकसीम किया और फीकस 2000 रुपए नकद तकसीम किए। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़ घारो। मारूफ आलिम दीन ने इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद रमजान अल मारूफ मलंग बाबा को हैदराबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा में जमीयत उलमा पाकिस्तान के साहबजादा मोहम्मद अल खैर जुबैर, मुफ्ती मोहम्मद मियां बरकाती, हाजी गुलशन इलाही और हैदराबाद की सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मलंग बाबा हैदराबाद के अजीम बुजुर्ग थे। वाज़ेह रहे कि वो कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। बात करेंगे रेलवेज की। रेलवे पुलिस के 72 ऑफिसर ने मीरपुर खास झट्टू की रिहायशी बेवा खातून के बेटे को मिली भगत के जरिए अगवा कर लिया। खातून ने बताया है कि उसका बेटा गुलाम देवी रेलवे हेडक्वार्टर्स में 7 माह से रिहाइश पजीर था, जिसका 20 रुपये किराया अदा करने पर रेलवे मुलाजिम गफ्फार ने क्वार्टर खाली करने के लिए झूठे केस में इंदराज करके धमकी भी दी थी। खातून ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि वो क्वार्टर खाली करने को तैयार है। खातून ने आला हुकाम से अपील की कि उसके जहनी माजूर बेटे को फौरी बाजियाब कराया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर मुल्क भर की तरह टंडोला यार में भी एमक्यूएम की रुकनियत साज मुहिम का आगाज हो गया है। इसी सिलसिले में मेन बस स्टॉप के सामने कैंप भी लगाया गया है। मरकजी कैंप में एमक्यूएम टंडोला यार के जोनल इंचार्ज सैयद मोहम्मद अली शाह, ज्वाइंट जोनल इंचार्ज शाहिद आलिम कायम खानी, अरकान जोनल कमेटी साकिब अहमद खानजादा, बाबर अहमद राजपूत, मकबूल हुसैन ओढो, अरसलान खानजादा, अरशद अली और दीगर जिम्मेदारान ने एमक्यूएम में शामिल होने वाले अफराद की रुकनियत फॉर्म पुर किए। इस मौके पर अवाम में रुकनियत साजी के हवाले से काफ़ी जोशो खरोश पाया गया, जबकि मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस रुकनियत साजी में हिस्सा लिया। रुकनियत साजी कैंप का दौरा करने वाले अवाम ने रुकनियत साज मुहिम को 98% अवाम के मुनज़्ज़म इनकलाब की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। कबल अज़ीज़ जोनल इंचार्ज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रुकनियत साज मुहिम में हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत नज़र आई है और ये इस हकीकत की निशानदही करती है कि बहुत जल्द मुल्क में इंसाफ और अमन का एक नया दौर होगा। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ेंगे। अब बात करेंगे नोकॉट की, जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से भी तजावज़ कर गया है, जिससे सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। नोकॉट समेत ज़िले थरपारकर के शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटे जबकि देहात में 20 घंटे तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब बिजली के वोल्टेज में भी कमी पेशी की वजह से कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के जल जाने की शिकायत भी सामने आई हैं। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं, जबकि बाज़ इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। उधर सिंध और बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 रोज़ में सर्दी की लहर और बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे से घरेलू ख़वातीन को भी सख्त दुश्वारी का सामना है। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध में असातिज़ा की कोई इज्जत नहीं है। वज़ीर तालीम असातिज़ा को मज़ारे समझते हैं। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोफेसर सिद्दीक ने कहा कि प्रोफेसर याकूब जानियो और दीगर शुरका भी उनके साथ हैं और उनका कहना है कि पैगंबरी का पेशा इख्तियार करने वाले असातिज़ा आज बेतौकीर हो चुके हैं। उनका कहना था कि सिंध के वज़ीर तालीम असातिज़ा के साथ उनके मसाइल हल करने के बजाय उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरवा रखते हैं। वज़ीर तालीम की नाक के नीचे बदउनवानी और करप्शन का बाजार गर्म है।
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سندھ یونیورسٹی کے برطرف اساتذہ کو فوری بحال کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا وقت کے ساتھ۔